Today, me and Mahesh will be discussing in front of all of you that how you can conquer this process of chemistry in the particular exam and how you all can study well by using pre-med. Well, first of all, I'm Alia Siddiqa, and right now I'm studying BS Chemistry as my major subject in Qaid-e-Azam University. And right now it's my third semester. It's going to be started in the fall, and in pre-med, I am the course instructor for Parvaz MDCAT and also for the 100 days crash course. So for me, this journey has been extremely amazing, and inshallah, it's gonna be great for all of you too. Now, Mehrish will tell you everything about her. Assalamu alaikum everyone. This is Mahesh Binti Tanveer, a first year MBBS student at Karachi Medical and Dental College and a chemistry course instructor at premed.pk. Today, we are gonna tell you that you have to approach chemistry as your subject in MDCAT. Over to Arya. Test pattern right now. So in test pattern, we see that we have a total of 45 MCQs of chemistry out of 180 according to the new syllabus that has come in front of us and the new pattern that has come. So we have a total of 45 MCQs. So if we break down these 45 MCQs, we have 15% easy MCQs, 70% moderate, and 15% hard. If I talk about the overall ratio, how many topics we are having in chemistry, so it's over 20. So from each topic you'll be assessed one MCQ each. So in this way that overall all the topics are extremely important, and some of the topics which are high yield will be discussed by my group mates. So in this way you'll be able to solve the chemistry paper. Over to Mahesh. So, how to prepare chemistry, MDCAT chemistry, and how I get through the subject during my MDCAT. So basically, I'm a first year MBBS student, and I gave my MDCAT last year, and Alhamdulillah, I scored out of 52 marks out of 54 in chemistry portion. So basically, chemistry को approach किस तरह करना है, आपको करना क्या क्या है, कौन सी resources deal करनी है, क्या चीज करनी है, and since इस वक्त हमारे पास पूरा syllabus out हो चुका है PMDC syllabus का, so what we are gonna do is basically सबसे पहले आपको अपनी provincial book पे focus करना है, ठीक है? Instead of cramming all the board books, आपको अपना जो मेजर फोकस रखना है, इट शुड बी योर ओन प्रोविंस बुक, क्योंकि हमारे पास प्रोविंशियल एमडीकैट हो रहा है, ठीक है? इफ इट वुड बी नाम्स और इफ इट वुड बी लाइक नेशनल एमडीकैट, देन हम जाते हैं कि दूसरी बुक बोर्ड की बुक्स की तरफ, बट सिंस हमारा प्रोविंशियल एमडीकैट है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपकी होगी दैट शुड बी योर provincial book, ठीक है? उसके अलावा once you are done with your province book, then you must go towards the federal और PTB कोई एक book और उठा लीजिएगा in case of extra topics, ठीक है? ताकि आप लोग की जो भी lackings होंगी अपनी book से वो दूसरी से cover हो जाए. Moreover, आपको अपने concepts पे काम करना है, ठीक है? Instead of like basically rectification के बजाय you have to go for the concepts, because MDCAT में आपके concepts जब तक strong नहीं होंगे you can't go through them, ठीक है? You can't get through the MCQs. Right? So basically, what should be your preparation checklist? What should be your preparation criteria? जिस पे आप decide कर सकते हो कि either you have completed a particular chapter or not. So सबसे पहली thing आपको क्या करनी है, आपके पास concept पे grip होनी चाहिए.
अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। इफ एफएससी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, एफएससी में थ्योरेटिकल थ्योरी होती है, निकल जाता है एफएससी, बट फॉर एमडीकैट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, यू मस्ट हैव क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू गेट थ्रू द एमसीक्यूज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे क्या होता है कि लाइक ऑफ कोर्स मेरे पास एक डिफिकल्टी लेवल कुछ मॉडरेट होता है, कुछ ईजी होता है, कुछ हार्ड होता है। व्हाट पीपल डू, वो ज्यादा फोकस करते हैं मुश्किल एमसीक्यूज पे, कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज पर, फिर इस तरह वो बेसिक एमसीक्यूज छोड़ देते हैं, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट पिकअप हो गई, उसके बाद सेकंड पॉइंट शुड बी योर बुक रीडिंग, ठीक है। हमारे पास बहुत ज्यादा ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि मेरे पास पास्ट पेपर्स में क्या होता है, एज इट इज बुकिश लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है। व्हाट पीपल डू, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होते हैं, ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आपको सबसे पहले अपनी बुक रीडिंग करनी है। यू हैव टू सी कि बुक आपकी क्या कह रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, राइट। देन आपके पास क्या होता है, आपके पास आ जाते हैं एंड ऑफ चैप्टर एमसीक्यूज, ठीक है। एंड ऑफ चैप्टर एमसीक्यूज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऑलमोस्ट हर प्रोविंस की बुक में चैप्टर के एंड में कुछ पर्टिकुलर एमसीक्यूज होते हैं जो कि एक्सरसाइज के तौर पे लाइक इट्स ईदर 10 और 15। हमारे पास कभी कभी एमडीकैट में वहां से एज इट इज एमसीक्यूज उठ के आ जाते हैं। सो व्हाट पीपल डू, दे टेंड टू इग्नोर दोस एमसीक्यूज। हमें ये काम नहीं करना। व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट पिकअप होनी चाहिए, सेकंड थिंग बुक रीडिंग होगी तो जो है क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट दोबारा से रिव्यू हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि अच्छा बुक में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन बुक के एंड के जो एमसीक्यूज होते हैं, चैप्टर एंड के एमसीक्यूज, यू हैव टू सॉल्व दोस। देन हमारे पास हर चैप्टर के एंड में समरी होती है, उस समरी से पॉइंट्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स एज इट इज उठ के कभी कभी एमसीक्यूज पूरा एमसीक्यू बन के आ जाता है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है पास्ट पेपर एमसीक्यूज, ठीक है। पास्ट पेपर एमसीक्यूज करने से क्या होता है, यू गेट एन आइडिया कि आपके पास लाइक किस तरह से एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं एमडीकैट में, आपके पास क्या क्राइटेरिया है, किस लेवल के एमसीक्यूज आ रहे हैं, और बेसिकली क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, पास्ट पेपर्स जब बंदा सॉल्व करने लगता है उसको पता चल जाता है अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके सो बॉन्ड एंगल से एमसीक्यूज आ रहे हैं, मुझे हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करना है, मुझे वीएसईपीआर थ्योरी करनी है, तो फिर मैं जो है क्या करूंगा, मैं उसको सॉल्व कर सकूंगा आगे, ठीक है। सो बेसिकली पास्ट पेपर से आपको ट्रेंड पता चलता है, आपको पता चलता है कि एमडीकैट फेवरेट्स क्या है, बेसिकली जो एग्जामिनर्स हैं उनका फेवरेट टॉपिक क्या है, हाई यील्ड टॉपिक्स क्या है, ठीक है। देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आप जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। आपके पास कॉन्सेप्ट के बाद जो पहली मेजर चीज आती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, रियल लाइफ सिमुलेशन में प्रैक्टिस नहीं होगी। लाइक सिमुलेशन में कैसे कि बेसिकली आप टाइमर लगा के एमसीक्यूज करें, उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर एमसीक्यू इतना टाइम लगा रही हूँ तो मुझे इस पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आई हैव अ पर्टिकुलर टाइम फॉर माय टेस्ट, ठीक है। तो मुझे उस टाइम में अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, तो मुझे केमिस्ट्री पोर्शन को कितना टाइम देना है, ठीक है। फॉर 45 एमसीक्यूज मुझे कितना टाइम देना है कि अगर मैं एक एमसीक्यू पे 5-5 मिनट ज़ाया करने बैठी तो मेरा पूरा टाइम तो केमिस्ट्री में निकल जाएगा। मुझे इस टाइप की मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। देन आई हैव रिविजन। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ चैप्टर किया, 5वें दिन पहला चैप्टर भूल जाते हैं। जब तक एक्टिव रिकॉल नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं होगी। सो एक्टिव रिकॉल इज द की। आपको रिवाइज करना है, जो पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास इस वक्त जितने सब्जेक्ट्स हैं, देन हर सब्जेक्ट को लेके मैनेज करना, उसमें क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं चैप्टर्स। सो रिविजन इज द की, रिवाइज करना है, राइट। So this should be your criteria, this should be your preparation checklist के how you have to go through the chapters कि मेरे पास ये particular chapter complete हो गया या नहीं हो गया, ये checklist अपनी prepare किया करें हर chapter के साथ, और देखा करें कि if you have ticked all the points or not. Over to Alia. Okay, so first of all, before discussing the high yield chapters, we have a little bit of discussion on the syllabus. So I'll be discussing in front of you the syllabus of MDCAT that has come in डिस्कशन। सो एमडीकैट का इस दफा सिलेबस जो केमिस्ट्री का है उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज नोट की है कि अगर हम लोग देखें हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो एक न्यू चैप्टर हमारे पास ऐड हुआ है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। सो आई स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, लिमिटिंग
कैन एक्सेस, रिएक्टेंट्स वगैरह, इन सब के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आप लोगों को मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, मेसेंग्राम बता दो, मोल्स बता दो। आपको फॉर एग्जांपल ये पूछा जाएगा कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, या अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो आपको एक्चुअल यील्ड निकालने को आ जाती है, तो इस तरह निकालने को आ जाते हैं। तो फॉर इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक ओनली केमिस्ट्री, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी। एक्सपोज योरसेल्फ एज मच टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज यू कैन। एंड वन मोर थिंग, कैलकुलेटर को थोड़ा अपने से दूर रखें। कैलकुलेटर को अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली पेपर के अंदर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ी सी मुश्किल कैलकुलेशन आ जाती है, पॉइंट्स वाली आ जाती है, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। सो इन दिस वे ये आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज द चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने इस दफा एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये भी देखा है कि ओनली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज इंक्लूडेड एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो स्टार्ट का जो रदरफोर्ड वाला काम था वो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। देखिए जो एमडीकैट का सिलेबस आता है, यू हैव टू स्टिक टू दैट एंड यू डोंट हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि चैडविक का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। आपने उसको पूरा प्रिपेयर करना है। अब आपको पता होना चाहिए परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल हो रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर क्या था, और इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हमारे पास पंजाब की बुक में लिखी हुई है। आपके जो अपनी बुक है उसकी पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ो। अगर उधर से समझ नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो जोन सी बुक से आपको अच्छा समझ आ रहा है वहां से पढ़ लो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज आल्सो इंक्लूडेड। उसके अंदर जो फोटोन का आपके पास जो कॉन्सेप्ट था और E = hf वाला जो आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्वांटम नंबर्स ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये दो, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, फिर आपको रूल्स आने चाहिए, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल, मतलब यू शुड नो हाउ टू अप्लाई द रूल्स एंड वेयर यू हैव टू अप्लाई इट। Then you should know that what kind of ambiguous electronic configurations are present in the periodic table और उनको आगे से आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में SPDF की शेप्स कितनी होती है, उनके ऑर्बिटल्स कितनी होती है, उनकी रोटेशंस कितनी होती है, जो कुछ आपकी बुक में लिखा है वो सब आपका तैयार होना चाहिए। देन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वो भी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह, इनका कलर क्या होता है, कौन सा यूवी के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा विजिबल लाइट के अंदर होता है, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने डिस्कस कर लिया। इंडिविजुअल एटम की भी आनी चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए, राइट करने का तरीका भी आना चाहिए। Coming to the next chapter, which is gases. Gases के अंदर it's a long chapter, but it is not difficult. Students usually think that gases के chapter में से बहुत ही difficult portion आता है, नहीं। gases के portion के अंदर आपके पास KMT included है। KMT के जो postulates है वो बहुत basic है। वो आपको बता रही है कि गैस के अंदर particles होते हैं, उनको atoms बोलते हैं, सब basic लिखा हुआ है। ज्यादातर जो important काम आता है वो standard temperature and pressures आपको पता होने चाहिए। Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, इन सबका आपको पता होना चाहिए। इनके ग्राफ्स कौन से होते हैं, आइसोथर्म, आइसोकोरिक, आइसोबार, ये सारे के सारे ग्राफ। फिर एब्सोल्यूट जीरो का जो कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों के पास, आपको उसका बहुत डीप एनालिसिस होना चाहिए कि -273 और या केल्विन। उसके बाद डिग्री सेल्सियस से केल्विन की कन्वर्जन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस की, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन। ये कन्वर्जन बेसिक होती है जो आनी चाहिए। फिर आर्टियल गैस इक्वेशन की जो ओवरऑल आपके पास बनती है PV = nRT, और फिर R की जो डिफरेंट आपके पास यूनिट्स आ जाते हैं, उनसे जो डेरिवेशंस होती हैं, डेरिवेशंस तो एक्चुअली पेपर में नहीं आती, उनसे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फाइनली आपको रियल और आइडियल गैसेस का जो बेसिक सा डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली कभी कभार हो जाता है एट विच टेम्परेचर द आइडियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द रियल वन। So now it's low temperature or it's high temperature, students usually get confused in that. So basic concept is extremely important, which comes through reading of book. Next one is the liquids chapter. Liquids का chapter जो है ये conceptual chapter है। सबसे पहले जो आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला क्वेश्चन है वो सारा का सारा LDF, डायपोल इंड्यूस्ड। यू शुड नो डायपोल पोलर में होती है, जो डायपोल इंड्यूस्ड होती है वो नॉन पोलर और पोलर में होती है। LDF जो है वो सिर्फ नॉन पोलर में होती है। अब ये डिफरेंसेस आपने खुद बनाने हैं। फिर आपके पास जो टॉपिक्स आ जाते हैं, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एवेपोरेशन, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं इनके ट्रेंड्स पता होने चाहिए। बहुत अच्छे ग्राफ्स आपकी बुक्स के अंदर बने हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए एथाइल अल्कोहल, थाइलिन ग्लाइकोल, इनकी क्या टेम्परेचर्स हैं। यूजुअली UHS के पेपर के अंदर ये आ जाते होते हैं। तो बाकी जो है KMT, ईटा वगैरह जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर भी पूछ लिया जाता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट ये करता है कि
दे थिंक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, और यही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होती है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है उसके साथ जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ये, थोड़ा सा आपको इसके ऊपर फोकस करना है। फिर अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सॉलिड्स का चैप्टर। जहां तक सॉलिड्स के चैप्टर की बात है, इट इज ऑल लर्निंग बेस्ड, ठीक है। whatever examples are given in your book, whatever tables are there, whatever is there, almost everything from this chapter is included, from crystalline solids to crystal lattice to ionic and molecular crystals to types of solids, factors, everything is included. And this whole chapter is actually knowledge based, learning based chapter. नेक्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में बेसिक चीज होती है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए किसी की वैल्यू किधर ज्यादा हो रही है, किसी की वैल्यू किधर कम हो रही है। बफर सोल्यूशन किस तरह बनती है, कौन से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या वीक एसिड होता है, या फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक सॉल्ट जो होता है, वो सारा का सारा आपको इनके पेयर्स आने चाहिए कि किस तरह होगा। एक बुक रीडिंग से, एक एमसीक्यू से अपने आप को एक्सपोज करने से। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको पता होने चाहिए, केसी कब क्यूसी से बड़ा होता है, क्यूसी कब केसी से बड़ा होता है, ये वाले डिफरेंसेस आपको आने चाहिए। फिर रिएक्शन काइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर जो होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर लिखी है, यूजुअली पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस का क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फाउंड ऑन पेपर, you cannot just do plus minus and find the order of reaction. For that you have to have this knowledge that you should know all kinds of examples. You should know what is fractional order of reaction, what is pseudo first order of reaction, what is first order reaction. So basic concept over here lies a lot. So these both chapters are quite conceptual. तो उनके लिए ग्राफ्स, उनका जो आर्हीनियस इक्वेशन के साथ डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो सब कुछ आपको लाइक यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट। Next is thermochemistry and electrochemistry. Both these chapters are quite basic, और ये अगर आप इनको पेयर बना के कर लो तो ज्यादा आसान होगा। देखो थर्मो के अंदर आप लोगों के पास इस वक्त बेसिक डेफिनेशन, एक्सो और एंडो का डिफरेंस, उनके ग्राफ्स, उनका जो है प्रोडक्ट किस में ज्यादा होती है, प्रोडक्ट किस में कम होती है, जो उनमें डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही होती है, स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी, यूजुअली इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। वर्क टर्न कब पॉजिटिव होता है, कब हीट एनर्जी पॉजिटिव होती है, इंटरनल एनर्जीज का क्या होता है, ये सारा सारा पूछा जाता है। फाइनली हेसेस लॉ और एंथैल्पी जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास। तो ओवरऑल दीज चैप्टर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस, किस तरह आप लोग एक पर्टिकुलर आपको इक्वेशन दे दी जाती है, आयनिक इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल एक साइड पे मैंगनीज 3 पॉजिटिव और दूसरी साइड पे मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस और हाउ मेनी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपेंस। सो यू शुड हैव दिस पर्टिकुलर वे, यू शुड नो दैट किस तरह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो रहा है, किस तरह से हम लोग के पास चार्जेस फाइंड आउट किए जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें आपके पास कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन सब का आपके पास डिफरेंस आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंदर कैथोड पॉजिटिव हो रहा है, किसके अंदर कैथोड नेगेटिव हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट। Next is chemical bonding, which is probably the last chapter of first year, and it's extremely important. Chemical bonding में आपके पास जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उनमें जो हमारे पास वेस्पर थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द शेप्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। ठीक है, अगर आपको AB3 पता है, AB4 पता है, ये तो सही है, लेकिन अगर आपको लिखा जाए SnCl2 की क्या शेप होगी या BeF2 की क्या शेप होगी, तो इसको निकालने का बेस्ट तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन आती है, आप उसके वैलेंस शेल को अपने सामने रखते हो, उनसे आप शेप बनाते हो तो आपकी करेक्ट शेप बनती है। फिर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस जो है बहुत दफा पेपर के अंदर आ जाता होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज यूजुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर पूछ ली जाती है, तो इंस्टेड ऑफ एट दैट टाइम यू आर लाइक sp3 होगा या sp2 होगा, यू शुड नो दिस स्टेप एंड क्विकली यू शुड नो दिस स्टेप कि आप सबसे पहले अपने पास उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उनका वे ऑफ राइटिंग लिखते हो कि ये किस तरह बनेगा, और बना के आप एकदम से डिटेक्ट कर लेते हो। फिर डायपोल मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर किस तरह वो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकाला जाता है, इसकी बहुत अच्छी जो एक्सप्लेनेशन लिखी है फेडरल की बुक में लिखी है। ऑल्दो इट्स अ प्रोफेशनल MD-CAT, बट आई एम अगेन सेइंग अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो आप लोग बहुत आसानी से उस टॉपिक को जो हो किसी और बुक की एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो।
फिर हमारे पास आ जाती है सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर इज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक एंड एज वेल एज द ऑर्गेनिक चैप्टर्स. इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स हैं, एसएनपी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें से एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इस दफा एमडीकैट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स आ जाते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, इन सब की जो ट्रेंड्स, जो एम्बिगुअस ट्रेंड्स है वो पेपर में पूछे जाते हैं. बिकॉज जनरल ट्रेंड सबको पता होता है, बट एम्बिगुअस ट्रेंड किस तरह, सल्फर का ज्यादा या फॉस्फोरस का ज्यादा, इस तरह आपको पूछ लिया जाता है. फिर आपके पास जो बेसिक रिकग्निशन होती है एसपीडीएफ की वो इंक्लूडेड है. पीरियड 1, 2, 3 वाला सारा का सारा काम एक्सक्लूड हो चुका, एंड राइट नाउ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4, दैट्स इट. ओनली देयर रिएक्शंस विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन आर इंक्लूडेड. फेडरल की बुक के अंदर थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर आप पंजाब, सिंध, केपी की बुक्स देखें तो वहां पे बहुत बैलेंस तरीके से एक्सप्लेन किया गया. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जहां तक बात है तो उसके अंदर सारा का सारा जो नोमेनक्लेचर वाला काम था, जो हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला काम था, वो सारा का सारा एक्सक्लूड हो गया, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और जो ट्रांजिशन सीरीज है वो हमारे पास इंक्लूडेड है. तो ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एम्बिगुअस पार्ट. आपको पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है डी ब्लॉक की, और उसके बाद हमारे पास जो कॉपर, क्रोमियम, जिंक, मैग्नीज, इन सब की आयनिक फॉर्म के अंदर एंड नॉन आयनिक फॉर्म के अंदर यानी स्टेबल स्टेट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Next topic that we have is the fundamental principles of organic chemistry. Organic chemistry start होते ही सबसे पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें बेसिक हम लोगों को सिर्फ डेफिनेशंस बताई गई हैं और क्लासिफिकेशन बताई गई है. फिर फंक्शनल ग्रुप का आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, अमीन और अमाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है. आइसोमराइजम्स के अंदर सिर्फ स्टीरियो आइसोमराइजम और उसकी टाइप्स इंक्लूडेड है, तो आपको आना चाहिए. इसकी एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स देके जिधर भी है वो आपको अपनी बुक की याद करनी है, क्योंकि पेपर में आपकी अपनी बुक से एग्जांपल्स पूछी जाएंगी. Talking about chemistry of hydrocarbons, we have the nomenclature of alkanes, we have the free radical mechanism, and then इसके अंदर free radical mechanism के steps आ जाते हैं. उसके बाद देखिए chemistry of hydrocarbons की जहाँ तक बात करें ना, तो ये जितनी ऑर्गेनिक है इसमें अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनको ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पेपर में 45 एमसीक्यूज में से 15 एमसीक्यूज सिर्फ ऑर्गेनिक के होंगे. और उन एमसीक्यूज में ज्यादातर जो आपको क्वेश्चन आएगा एक प्रिपरेशन का आएगा, ऑल्दो ग्रिग्नॉट रिएजेंट इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ग्रिग्नॉट रिएजेंट में से क्वेश्चन आता है. और तीसरा क्वेश्चन होता है नेमिंग का. तो आपको पता होना चाहिए किधर डबल बॉन्ड पहले बोलना है, किधर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अगर अमीन लगा हुआ है तो किस तरह होगा, एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है किस तरह होगा. अब एलिमिनेशन का स्टेप किस तरीके से होता है उनके. अब पर्टिकुलर रिएक्शन जब ऑर्गेनिक का होता है ना आपके पास, तो 2 चीजें होती है. उसका सबसे पहले आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, और दूसरा चीज आपको प्रोडक्ट क्या बन रही है. ठीक है, अगर आपको रिएजेंट का पता है तो आपको रिएजेंट भी पूछ सकते हैं. प्रोडक्ट जो बन रही है, देखिए फॉर्मूला नहीं आता, आपको नेम ऑफ द प्रोडक्ट आना चाहिए. तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट आपके पास जो है आप उसको डिस्कस करोगे. सही हो गया. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बन रही है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, तो अब आपने इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक यू शुड नो पॉलीविनाइल क्लोराइड बना किस तरह, उसका रिएजेंट क्या होगा. इस तरीके से आपको रिएक्शन लाइक ओवरऑल यू शुड बी प्रो इन मेकिंग द रिएक्शंस. और वो इसी तरह होगा प्रैक्टिस. ऑर्गेनिक हमेशा प्रैक्टिस से होती है. अपने सामने लिख लो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किस किस चीज से होती है. हमारे पास हाइड्रोलाइसिस से होती है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से होती है. ये सब चीजें अपने पास टेबल्स बनाकर लिख लो, अपने नोट्स बनाने शुरू करो, अपनी बुक को देखो तो काफी ईजी हो जाएगा. जहां तक बात है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर की, तो उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन है. उसमें हम बहुत ज्यादा रिएक्टिविटीज देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा है, और वहां पे रिडक्शन रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा है. तो उस पर्टिकुलर को जरूर देखना है. अच्छा, जोन से आपके पास होते हैं ना एमडीकैट फेवरेट्स के अंदर, वो वाले भी रिएक्शंस आते हैं जिनके नेम्स होते हैं. जैसे आप लोगों के पास हमारे पास जो रिडक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन की, जैसा वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन हो गया, आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो गए, इस तरह जिन रिएक्शंस के नाम है वो तो खास तौर पे याद करने, बिकॉज समटाइम्स पूछ लेते हैं फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट इन क्लेमेंसन रिएक्शन इज डैश, तो आप लोग उसका क्या आंसर दोगे. आपको पता तो हो कि क्लेमेंसन रिएक्शन क्या. सो एक्सपोज योरसेल्फ टू एमसीक्यूज, एक्सपोज योरसेल्फ टू योर बुक. नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत बेसिक चीज है नेमिंग. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एडिपिक एसिड, हेक्सागोनिक एसिड, हम लोगों के पास जो है ये सारे एसिड्स कौन से हैं, आपको कॉमन नेम्स भी आने चाहिए, आपको इनका यूज भी पता होना चाहिए, बिकॉज नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंसर्न. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है इसमें ओवरऑल सारी चीजों की कन्वर्जन्स मिली हुई है. ओवरऑल ये जिसे कह लेते हैं ना हम लोग एंडिंग है ऑर्गेनिक की.
तो इस चैप्टर के अंदर हमें सारों की मेकिंग पता लग रही है। अगर आप फेडरल की बुक से देखो तो उस बुक के अंदर एक एक की फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप वहां से कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक का मैं ज्यादातर ये कहती हूँ कि जो आपकी अपनी बुक है उससे नोट्स बनाए, टेबल्स ड्रॉ करें, रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट दैट यू आर यूजिंग। तीन को डिवाइड कर लो, रिएक्टेंट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, और रिएजेंट क्या है, इस तरह याद कर लो। फिर समझो हाइड्रोलाइसिस, इट मींस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होगा। ऑब्वियसली प्रोडक्ट के अंदर वाटर नहीं बनेगा, नहीं, वाटर तो खत्म हो गया। अगर आपके पास डी कार्बोजाइलेशन है, आपको पता होना चाहिए कार्बोजाइलेशन को फिनिश करना है हम लोगों ने। तो इस तरह जो नेम ऑफ द रिएक्टेंट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से याद करो। फिर हमारे पास आ जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का टॉपिक इंक्लूडेड है। प्रोटीन के अंदर क्लासिफिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस और एंजाइम्स एज बायोकैटलिस्ट, ये तीन टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है, जहां तक बात की जाए लास्ट ईयर की, तो कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर फैट, लिपिड सब कुछ इंक्लूडेड था। बट इस टाइम सिर्फ प्रोटीन्स का टॉपिक इंक्लूडेड है। सो यू हैव टू स्टिक टू प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी प्रोटीन के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या टर्शी के अंदर होगी, ये अब डिफरेंस आपको आना चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्या है। अच्छा, सिंह की बुक के अंदर इसकी डिजीजेस पे, सॉरी केपी की बुक के अंदर आपके पास डिजीजेस लिखी हुई है, तो डिजीजेस आर नॉट इंक्लूडेड। अपने आप को पाइल अप मत करें एक्स्ट्रा पढ़ पढ़ के, जो आपका सिलेबस है just stick to that. Next is the industrial chemistry, which is probably the last chapter and the new chapter that's included in MDCAT syllabus. So for this chapter we have the three topics, which is adhesive, dyes and polymers. So इन तीनों के अंदर अब आपने adhesives के आपको पता होने चाहिए इसकी टाइप्स क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। adhesives की जिस तरह नेचुरल, सिंथेटिक, ऑलमोस्ट सारे पॉलीमर्स इस तरह, पॉलीमर्स, डाइज, एडहेसिव, नेचुरल, सिंथेटिक सब कुछ है। अब इनकी सब टाइप्स भी आ जाती है, आपने वो भी करना है। हर बंदा अपनी अपनी बुक को देखे, जितना जितना आपकी बुक में लिखा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, यू हैव टू कंप्लीट दैट होल। इन शॉर्ट की जो मैंने पूरा सिलेबस आपके सामने ब्रेक डाउन किया है, अगर इस सिलेबस की मैं बात करूं तो आपको इस दफा वन लाइनर सिलेबस आया, मतलब मेन टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने उस पर्टिकुलर नेम के ऊपर चलना है। एंड यू शुड लाइक, लिखा है ना डिफाइन फोटोन एज यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। अब फोटोन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट्स थ्योरी, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पैकेट ऑफ फोटोन से लेकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारे पोस्टुलेट्स आपके सामने होने चाहिए। ऑर्बिटल वर्ड लिखा है, ऑर्बिटल का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह से ऑर्बिटल्स की पेयरिंग होती है, एंड ऑल ऑफ दैट की सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। एंड एज मैरिश टोल्ड यू कि जितनी आप ज्यादा बुक पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। So that's all from my side about the whole syllabus breakdown. और जहां तक इंडस्ट्रियल की बात है, सिर्फ ये एक न्यू चैप्टर आया है, बाकी बहुत सारा जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें से बहुत सारी चीजें रिमूव की गई हैं, ताकि बेसिक्स के ऊपर आप लोग ज्यादा रहो। अगर आप लोगों को रिएक्शंस देखो एसएनपी के, तो सिर्फ ऑक्सीजन, वाटर और क्लोरीन के साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो अगर आपकी बुक में फास्फोरस के साथ लिखे हुए हैं, जिस मर्जी के साथ लिखे हुए हैं, कंपाउंड्स बने हुए हैं, इट्स नॉट इंक्लूडेड। यू विल जस्ट स्टिक टू योर ओन सिलेबस। ओवर टू यू महेश। Thank you so much, Alia, for such a brief description about the syllabus. One more point I would like to add is कि basically हमारे पास जो new chapter add हुआ है, that is our industrial chemistry. As Alia ने बताया कि industrial chemistry हमारे पास तीन major topics हैं, that is dyes, polymers and adhesives. हमारे पास तमाम बुक्स में जो है किसी में कोई टॉपिक है, किसी में कोई टॉपिक है और किसी में कोई टॉपिक नहीं है। लाइक टॉकिंग अबाउट सिंथ, तो सिंथ बोर्ड में हमारे पास हेयर डाइस का टॉपिक है, हमारे पास नॉर्मल डाइस नहीं है। सिंथ बोर्ड में एडहेसिव्स बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सिंथ बोर्ड में पॉलीमराइजेशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट हमारे पास सिंथ बोर्ड में डाइस अच्छी नहीं लिखी, नहीं सिर्फ हेयर डाइस के बारे में। सो व्हाट सिंथ स्टूडेंट्स हैव टू डू, दे हैव टू रिफर फॉर डाइस के टॉपिक के लिए दे हैव टू रिफर द फेडरल बोर्ड बुक। ठीक है, फेडरल बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, फेडरल बोर्ड में हमारे पास पॉलीमराइजेशन भी है, हमारे पास डाइस भी है, बट एडहेसिव्स अच्छा नहीं लिखा हुआ। सो ओवरऑल अगर मैं बात की जाए तो एडहेसिव्स आपको स्मॉल सा पार्ट फेडरल में मिलेगा और बाकी मेजर डिटेल आपको मिलेगी सिंध बोर्ड में। सो एडहेसिव्स आपने सिंध बोर्ड से करना है और फेडरल बोर्ड से करना है। टॉकिंग अबाउट पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन आपके पास सिंध, फेडरल, पीटीबी तीनों में है, हमारे पास तीनों में पॉलीमराइजेशन मौजूद है। सही। उसके अलावा अगर आप फेडरल की बात, पंजाब की बात करें, तो पीटीबी में मेरे पास पॉलीमराइजेशन का टॉपिक आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स में मिल जाएगा। सही। देन वी हैव डाइस। डाइस सबसे अच्छा हमारे पास फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है। सही। सो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए बता दी बिकॉज हमारे पास बुक्स में कुछ टॉपिक्स नहीं है और कुछ टॉपिक्स हैं। सो मेरे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है, सो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। मोर ओवर
आलिया ने आपको एक प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन दे दी कि हाउ शी हैज टू अप्रोच लाइक हाउ वन हैज टू अप्रोच द सिलेबस एज अ होल, टॉकिंग अबाउट ओनली हाई यील्ड चैप्टर्स। ठीक है, उन्होंने 20 चैप्टर्स ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं। आउट ऑफ दोस 20 वी हैव शॉर्ट लिस्टेड 7 चैप्टर्स कि मेरे पास इन 7 चैप्टर से, इन 7 पर्टिकुलर चैप्टर से मेरे पास ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है, और लाइक जितना मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया पास्ट पेपर्स में, इन 7 चैप्टर से ज्यादा कंटेंट आता है। So the first chapter is basically our atomic structure. Atomic structure बिल्कुल basic chapter है. Most asked topic from this chapter is your quantum numbers. ठीक है, quantum numbers बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. You must have a strong grip on those quantum numbers. कौन सा set of quantum number मेरे पास possible है, कौन सा possible नहीं है, या फिर अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट कर सकती है. सो इस टाइप के तमाम रिलेशंस मेरे पास क्वांटम नंबर्स में आ जाते हैं. मोर ओवर कुछ बिल्कुल डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से. लाइक मुझसे डायरेक्ट डिस्कवरी पूछ ली किसी चीज की कि बताएं न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया. सही, तो इस टाइप के कुछ फैक्चुअल एमसीक्यूज भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं. सो आई मस्ट नो कि मेरे पास न्यूट्रॉन जो है वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया. और ये सब मुझे किस तरह आएगा, ये जो फैक्चुअल एमसीक्यूज होते हैं डायरेक्ट बीसीक्यूज उठ के आते हैं, तो ये मुझे बुक रीडिंग से आएगा. सही. अच्छा, उसके अलावा सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, द सेकंड हाई यील्ड चैप्टर वी हैव इज केमिकल इक्विलिब्रियम. For chemical equilibrium, the most important topic is your Kc, the equilibrium constant. Equilibrium constant की बात करूँ, equilibrium constant का unit, equilibrium constant की numericals, उसके अलावा equilibrium constant किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, उसके factors affecting the equilibrium constant. Moreover, उसके अलावा मेरे पास एक और टॉपिक आता है ली शैटलर्स प्रिंसिपल का. मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई होने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ली शैटलर्स प्रिंसिपल का 1 या 2 क्वेश्चन मेरे पास मस्ट होते हैं इन एमटीकैट. ठीक है. मोर ओवर मेरे पास केसी की एप्लीकेशन, लाइक वी नो कि केसी मेरे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में काम आता है. सही, तो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इफ केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, या फिर व्हाट विल बी द बेसिकली एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. एक और कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, दैट इज बेसिकली केपी. केपी मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है फॉर गैसेस. ठीक है, लाइक जब मेरे पास गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स के होते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो इक्वेशन पूरी फॉर्मुलेट करते हैं उसमें मेरे पास क्या होता है, उसमें मेरे पास केपी आता है इंस्टेड ऑफ केसी. सो केपी और केसी का रिलेशन, ठीक है, कि मेरे पास केपी केसी से कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, इस सब के हमारे पास स्मॉल ट्रिक्स होती हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास पूछे जाते हैं फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. सो एज अ होल अगर मैं बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम से आपके पास 3 एमसीक्यूज मस्ट होते हैं. Moving forward towards our third high yield chapter, the third high yield chapter is chemical bonding. Chemical bonding सबसे important topic, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी. ठीक है, इसमें शेप्स, इसमें मेरे पास कोई पर्टिकुलर सेंट्रल एटम है. ठीक है, सेंट्रल एटम में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके अलावा सेंट्रल एटम कौन सा शेप फॉर्म करेगा, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी और मैं काउंट करूंगी कि मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं VS-EPR थ्योरी अप्लाई करूंगी और मैं उसका शेप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ. मोर ओवर केमिकल बॉन्डिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट व्हाट पीपल डू, वो पूछते हैं कि हम चार्ट्स याद करें केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के, कि बॉन्ड एंथैल्पीज के चार्ट होते हैं, बॉन्ड लेंथ के चार्ट होते हैं. आपको वो तमाम वैल्यूज याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकली देखा जाए आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट है याद रखने के लिए कि इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू लर्न ऑल दोज चार्ट्स. ठीक है, सो इट वुड बी लिटरली एक जुल्म करेंगे अपने आप पर कि आप लोग के अगर उस पूरे चार्ट्स को रटने बैठेंगे, उन वैल्यूज को रटने बैठेंगे, व्हेन इट्स ऑफ नो यूज. ठीक है. लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर हमारे पास आई थी कुछ वैल्यूज, लाइक हमसे पूछा गया था कार्बन की बॉन्ड लेंथ इन आई गेस इथेन या इथीन, इस टाइप का एमसीक्यू आया था. उसके अलावा हमारे पास डेंसिटी पूछी गई थी. लेकिन इस टाइप के एमसीक्यूज थोड़े से नेग्लिजिबल होते हैं. किस तरह, क्योंकि आप ऑफ कोर्स किसी की पर्टिकुलर इतनी सारी वैल्यूज याद नहीं रख सकते. हमारे पास अगर 45 एमसीक्यूज है केमिस्ट्री में, तो उसमें से 40 एमसीक्यूज ऐसे नहीं आएंगे, सिर्फ 4 एमसीक्यूज को आप इस तरह छोड़ें. सो आप अपने उन 40 एमसीक्यूज पे अपना बेस्ट दें. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप इतने सारे लंबे चार्ट्स याद रख रहे हैं, जब 2 दिन बाद उन चार्ट्स को भूलना ही है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें. और आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि इस टाइप की वैल्यूज में अपना टाइम वेस्ट ना करें. राइट. मोर ओवर हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो याद रखनी होती है, लाइक दे आर मस्ट. जैसे अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 1 dBi इज इक्वल टू हाउ मच कूलम मीटर.
ठीक है, ये मेरे पास यूनिट कन्वर्जन होती है बेसिकली डायपोल मोमेंट की, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास सरफेस टेंशन के यूनिट्स हैं, सेंटीपॉइस, पॉइस, उस टाइप में उन तमाम यूनिट्स की कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। तो जो इसेंशियल चीजें होती हैं वो आपको आपके जो भी टीचर्स होते हैं वो साथ साथ बता देते हैं, बट इस तरह पूरी बुक के चार्ट्स याद रखना इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिटेनेबल नहीं होते, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द शेप्स जो कि आपको BS EPR थ्योरी से पता चलेंगे। यू मस्ट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यू मस्ट नो अबाउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। आपसे कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मुझे बताएं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वी ऑल नो कि अगर मेरे पास कोई भी दो एटम्स बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड पाई बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड, सही। मोर ओवर केमिकल बॉन्डिंग में मेरे पास यही मेजर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है एंड ऑल। Next, the fourth high yield chapter we have is S and P block elements, the first chapter of inorganic chemistry. ये क्यों important है? Because इसमें मेरे पास atomic trends हैं। Atomic trends चाहे वो periodic trends हो, चाहे वो group trends हो, you must know them, ठीक है। स्पेशली एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एटॉमिक रेडाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन मेरे पास ग्रुप 3A में आती है जब मेरे पास एल्यूमिनियम और गैलियम आ जाता है, ठीक है। क्यों एक्सेप्शन आती है? शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो मुझे एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए। उसके अलावा डाउन द ग्रुप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अक्रॉस अ पीरियड उसमें क्या फर्क पड़ रहा है और क्यों पड़ रहा है, एक्चुअली दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिकली द रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन मेरे पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्ट करता है, मेरे पास मल्टीपल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो आपसे इस तरह के MCQs आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड, ठीक है। आपको 4 एलिमेंट्स गिवन हो गए। तो मुझे पता है कि ग्रुप 1A में अगर मैं बात करूं तो लिथियम मेरे पास जो है नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है, सोडियम मेरे पास पर ऑक्साइड फॉर्म करता है और पोटेशियम मेरे पास सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। तो कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में कौन सा ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और उस पर्टिकुलर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर हमारे पास पंजाब में और फेडरल बोर्ड में बहुत एक्सेस इंफॉर्मेशन गिवन है इस चैप्टर की, ठीक है। लाइक सबसे पहले आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कस हुए हैं, उसके बाद एलिमेंट्स के उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के कंपाउंड, जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम सिलिकेट, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन के अलग मजीद डिटेल कंपाउंड्स, ठीक है। सिलिकॉन के इतने ज्यादा सिलिकेट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इस सब पे आपने फोकस नहीं करना। What you have to focus, आपके पास PMDC सिलेबस क्या कह रहा है कि ग्रुप 1A, ग्रुप 2A और ग्रुप 4A, इन तीनों ग्रुप्स के रिएक्शंस किस किस के साथ, वाटर, देन आई गेस ऑक्सीजन है एंड हेलोजन, इन 3 चीजों के साथ रिएक्शंस, ठीक है। सो सिर्फ एलिमेंटल लेवल पे, एलिमेंट के लेवल पे आप लोगों ने वर्क करना है, उसके रिएक्शंस प्रिपेयर करने हैं, इतनी ज्यादा हाई लेवल पे जाके इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। देन हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियड किस तरह निकालते हैं, ग्रुप किस तरह निकालते हैं, ब्लॉक किस तरह निकालते हैं, इस टाइप के MCQs भी आ सकते हैं, ठीक है। देन आवर फिफ्थ हाई यील्ड चैप्टर इज बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज अ वेरी वास्ट चैप्टर। इसमें मेरे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन चारों चीजें आ जाती हैं और चारों मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मोर ओवर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में मेरे पास आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में है, हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आपसे 2 कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है इनमें कौन सी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म है, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है या फिर मेरे पास मेटामेरिज्म है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म अलॉन्ग विद इट्स टाइप, अलॉन्ग विद इट्स एग्जांपल्स, ठीक है। इस सबको आप लोगों ने करना है। मोर ओवर एज अ होल ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में IUPAC नेमिंग इज अ मस्ट। आपके पास 1 MCQ इस लाजमी आता है, 1 और 2 MCQ IUPAC नेमिंग का। आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा किसको IUPAC नेमिंग करें, इसकी किसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सही। देन मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ हाई यील्ड चैप्टर दैट इज आवर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बात की जाए, अल्काइल हैलाइड में द मोस्ट फेमस टॉपिक द SN1 SN2 मैकेनिज्म एंड E1 एंड E2 मैकेनिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही। उसके अलावा एक चीज मिस हो गई, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फैमिली, बाय फैमिली आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कौन सी फैमिली मेरे पास कौन से सर्टेन टाइप के रिएक्शन शो कर रही है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन में कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर सीन इन
विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस में हो बेंजीन, ऑप्शंस में हो कीटोन, ऑप्शंस में हो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्काइल हाइड्राइड्स। तो मुझे पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब बात होती है तो एडिशन रिएक्शन मेरे पास हमेशा एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरे पास अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेरे पास बेंजीन शो करता है। तो ये सब बातें मेरे पास कब पता चलेंगी? बिल्कुल भी तब पता नहीं चलेंगी अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रट्टे मारेंगे। नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट। जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे ये सब कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग ऑल द रिएक्शंस, आपको किस चीज पे वर्क करना है? अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, बिकॉज केमिस्ट्री इज नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट। इसमें अगर एक दफा समझ में आ गया कि रिएक्शन कोई प्रोसीड किस तरह हो रहा है ना, आप अपनी मर्जी से, आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए आप रिएक्शन उसका परफॉर्म करवा सकते हो। कैसे? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से सिंपली। ठीक है, देन एक और टॉपिक मेरे पास अल्काइल हैलाइड में आता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। ऑल्दो इट्स नॉट ऑफिशियली इन योर पीएमडीसी सिलेबस, बट अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो आपके पास मोर और लेस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हर जगह अवेलेबल है। टॉकिंग अबाउट अल्कोहल्स या टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स ले लें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन मेरे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से होती है। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेरे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से होती है। अल्कोहल के चैप्टर में आपके पास रिएक्शंस हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के। ठीक है, सो आपके पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इंडिविजुअली तो एडेड नहीं है, बट ऑफ कोर्स जब आपके पास बाकी सारी फैमिलीज ऑर्गेनिक ही एडेड है तो उसमें कोई ना कोई रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो कि बच्चे फिर मिस आउट कर देते हैं कि हाँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है, जबकि ये आपको करना है टॉपिक, क्योंकि ये हाईली टेस्टेड टॉपिक है, पूछा जाता है। सही, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के हमारे वो रिएक्शंस लाजमी आते हैं। सही, then I have the seventh high yield chapter is alcohols and phenols. Alcohols and phenols की बात करूँ, मेरे पास जो phenols हैं basically, particularly phenols पे बात करूंगी। phenols की nomenclature is too much important, इनकी common naming specially। मेरे पास हाइड्रोक्विनोन में OH की पोजीशन क्या होगी, मेरे पास रिसोर्सिनोल में OH की पोजीशन क्या होगी, it all matters। ठीक है, so फिनोल की कॉमन नेमिंग को बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि ये पूछी जाती है। सही, उसके अलावा अल्कोहल फिनोल्स में मेरे पास बाकी इसके रिएक्शंस एंड ऑल ये सब आ जाता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, ग्लाइऑक्सिल क्या होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, दिस ऑल स्टफ इज इंक्लूडेड। ठीक है, सो आउट ऑफ दोस 20 chapters, these 7 chapters are basically your high yield chapters. Moreover, one point I would like to add here is कि whenever you are approaching any particular chapter, तो उसको बिल्कुल A से लेके नहीं बैठा करें। लाइक अगर आपने एक चैप्टर खोला कि आज मैं अल्काइल हैलाइड्स पढ़ूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हाँ चैप्टर बुक खोली इंट्रोडक्शन से पढ़ने बैठे। सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर खोलते हैं उसका मेजर टॉपिक पहले पढ़ा करें, ताकि जो है एक तरह से माइंड भी इंगेज हो, फौरन से बोरियत ना हो। सेकेंडली क्या होता है, आपका एक मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। सही, और आपको एक सुकून होता है, हाँ मैंने एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, मेरा कम काम रहता है भी। ठीक है, सो सबसे पहले हाई यील्ड टॉपिक्स पे फोकस करना है, हाई यील्ड चैप्टर्स पे फोकस करना है, और इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ओवर टू आलिया नाउ, हाई यील्ड चैप्टर्स आर डन। Okay, so as she told you all about the high yield chapters, I'll be talking about some of the MDCAT favorite MCQs जिस particular topic में से आते हैं। And as she said, मैं उनकी बात को second करूंगी, महरेश की बात को, कि भाई आपने जब chapter पढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले you don't have to start from zero. That will be first reading the introduction. Okay, अच्छा S&P के अंदर ये होता है। No, कम फर्स्ट ऑफ ऑल टू दैट पॉइंट जिधर सबसे मेन इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। एमडीकैट को अगर टॉपिक वाइज लेकर चलो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास आ जाता है sp3, sp2, sp। इनकी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जब होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये तो आप सबको आता है, लेकिन अब आपके सामने आ जाए वाटर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, आपको बतानी पड़ जाए तो आप किस तरह बताओगे? सबसे पहले पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने सिलेबस डिस्कस करते हुए और मैरिज ने अभी भी बताया, आपको बताना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते किस तरह। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके वैलेंस शेल्स को सामने लिखो, उसके बाद उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा लिखो, और उसके बाद उसको सॉल्व करो। फिर आपको पता लगता है अच्छा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर थिंग।
एल्कीन हो गया, जिस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब इसके अंदर कौन सी वाली हो रही है? सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कार्बन की लिखोगे, हाइड्रोजन की लिखोगे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर आप अनपेयर्ड इसके अंदर चेक करोगे, फिर आपको पता चलेगा ओ दिस इज sp2। ठीक है, तो ये अच्छा पेपर में बैठ के ये सारा प्रोसेस नहीं करना, यू वोंट हैव दैट मच टाइम, यू विल जस्ट हैव वन MCQ टू सॉल्व। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्या करना है, जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उसके अंदर इतनी ज्यादा हैंड रिटन इस तरह पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो कि कल को जब आप बैठे हो MCAT के पेपर में, तो आपको खुद ब खुद इन इंस्टिंक्ट MCQ देखते सार आपको आंसर आ जाए। उसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो चैप्टर टॉपिक आ जाता है, देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाउ डू यू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द मोल्स। अब समटाइम्स पेपर में सिर्फ मोल्स निकालने को आते थे, लास्ट टाइम स्टैम्बो के टेस्ट के अंदर सिर्फ आपको मोल्स निकालने को आए थे, जिसका आंसर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने गलत दिया था, बिकॉज हम लोग मुश्किल तरीन चीज प्रिपेयर करके चले जाते हैं, पर जो सबसे आसान चीज होती है, जिस तरह के सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर का मोल निकालना, वो हमें नहीं आ रहा होता, तो इसकी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मोल्स निकालने के बाद आप लोग कंपेयर करते हो मोल्स, जिसके मोल सबसे कम होते हैं उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते थे। नाउ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कभी कभार इसके अंदर डेसिमल के अंदर भी आंसर आ रहा होता है, तो ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, ये आपको घर बैठ के पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स का। आई अगेन से दिस थिंग, डोंट यूज अ कैलकुलेटर, डू इट ऑल हैंड रिटन। फिर रिएक्शन यील्ड वाला आ गया, सेम लाइक लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब आप कंपेयर कर लेते हो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, फिर उसके बाद उसको नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हो मैस इन ग्राम के साथ, आपको पता चल जाता है एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हो। यूजुअली थ्योरेटिकल यील्ड आपको मिली होती है, एक्चुअल यील्ड आपको निकालनी होती है। इस तरीके से यह होता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 4 बोर्ड्स हैं, 4 बुक्स हैं, आप लोग चारों बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इस तरह नए नए न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा पेपर के अंदर। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है कॉन्फ़िगरेशंस का। अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशन का। स्टूडेंट क्या करता है, जो गलती करता है स्टूडेंट के, वो सबसे पहले लेकर बैठते हैं बोहर की डेरिवेशन, और उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बच्चे आपको डेरिवेशंस नहीं आने, आपको फॉर्मूलाज नहीं आने, आपको एप्लीकेशन बेस्ड, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू विल गेट एप्लीकेशन बेस्ड MCQs। तो अब कॉन्फ़िगरेशन का MCQ हो गया, क्वांटम नंबर, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन दोनों में से किस तरह MCQ आएगा? आपको एम्बिगुअस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सीधी नहीं होती, मतलब 3D5 4S1 इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी। बिकॉज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल द स्टूडेंट्स दो, लेकिन जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उनमें बच्चे अटकते हैं। फिर क्वांटम नंबर्स वाले के अंदर आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आगे। अब आपको sp-df ऑर्बिटल्स का पता होना चाहिए। व्हाट इज s ऑर्बिटल? स्फेरिकल शेप होती है। p ऑर्बिटल डंबल शेप होती है। d ऑर्बिटल की क्या होती है? f ऑर्बिटल की क्या होती है? किसमें 14 ऑर्बिटल्स होते हैं, किसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, किसमें 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट। उसके बाद अब देखो MCAT के सिलेबस में सिर्फ एक वर्ड लिखा है ऑर्बिटल, उसकी अंदर की केमिस्ट्री सारी आपको आनी चाहिए। सही हो गया। उसके बाद आपके पास जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हो गए, सारे प्रिंसिपल, हुंड रूल, ऑफर रूल, ये सारे रूल्स आपको जबानी 101% याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो 6th टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैस लॉस। देखिए गैस लॉस आप लोग 9-10 से पेपर पढ़ते आ रहे, यू नो वेरी वेल किसके अंदर जो है प्रेशर कांस्टेंट है, किसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सबको पता होता है। लेकिन ये आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोकोरिक, ये वाले जो डिफरेंसेस होते हैं, ये स्टूडेंट यूजुअली उसमें गलती करता है, क्योंकि पेपर में यूजुअली होता है ना, स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा होता। तो आप यूजुअली बोहर के केस के, सॉरी बॉयल्स लॉ के केस के अंदर आइसोकोरिक लिख दोगे, और जो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ का केस होगा उसके अंदर कुछ और लिख दोगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से इनके ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है, और जो इनका जो टॉपिक आ जाता है एब्सोल्यूट जीरो का, उसके ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 7th टॉपिक इज क्रिस्टल सिस्टम। देखिए क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं ना, आप जितना भी कॉन्सेप्ट लगा लें, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, इन सब का कॉन्सेप्ट लगा लें, इन पेपर यू विल बी आस्क्ड कि मैग्नीशियम का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, ऑरम का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है। पंजाब की बुक का जो टेबल बना हुआ है दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मैं तो सब बोर्ड्स के बच्चों को कहती हूँ आप उस टेबल को जरूर देखें, आपको लिटरली उससे सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले एजेस, सबसे पहले दूसरे नंबर पे एंगल्स, नंबर 3 आर द एग्जांपल्स। ये 3 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। आपको पूछा जा सकता है किसमें नॉट इक्वल्स, एक एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और किसमें एक एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 120। सी थोड़ा सा MCQ में डिफरेंस है, आंसर्स डिफरेंट आएंगे। सो इस तरीके से एजेस, लेंथ के बारे में ये सब कुछ आपसे क्रिस्टल सिस्टम में पूछा जाता है। और ये मैं बोलूँ सॉलिड्स का जो चैप्टर होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके पास जो है वो एक लर्निंग बेस्ड चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर को मतलब पूरी केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ यही चैप्टर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको लर्निंग करनी चाहिए।
फिर हमारे पास केसी के यूनिट्स, केसी का जो एप्लीकेशंस होती हैं, केसी के फैक्टर्स जो होते हैं, केसी का ओवरऑल जो पूरा टॉपिक है केसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। आर्हीनियस का क्वेश्चन आ जाता है, टेम्परेचर के साथ किसका वेरी करता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फिर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो किसी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा किस तरह आएगा, ये ओवरऑल सारा का सारा इंक्लूडेड है। फिर ली शाटलियर्स प्रिंसिपल, ली शाटलियर्स प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि किस तरीके से जो है वो मिक्सिंग की वजह से हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, किस तरह प्रेशर का इफेक्ट आता है, किस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, तो इट्स ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगेन दिस इज ऑल्सो लर्निंग बेस्ड चैप्टर, और ये आपको आपकी बुक से आएगा, ठीक है। एज आई सेड बिफोर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फाउंड ऑन पेपर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पूरी केमिस्ट्री होती है जो केमिस्ट्री लैब्स में होती है। नाउ यू गाइस आर नॉट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, यू आर एमडी कैट स्टूडेंट्स। सो बीइंग फ्रॉम द एमडी कैट बैकग्राउंड, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो एमसीक्यूज है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, यूजुअली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के अंदर बच्चा गलती करता है, तो इस तरह के जो मैं कह रही हूँ ना यूनिक सा टॉपिक होता है ना, उसको जरूर प्रैक्टिस करें, उससे पूछा जाता है। फिर एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए किसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, किसमें रिलीज होती है, किसमें डेल एच पॉजिटिव होगा, किसमें डेल एच नेगेटिव होगा, किसके ग्राफ में प्रोडक्ट विल बी ऑन द हायर स्टेट, किसके ग्राफ में प्रोडक्ट विल बी ऑन द लोअर स्टेट। ये सारे डिफरेंसेस एंडो एक्सो को इन शॉर्ट आपको पूरा इनका मतलब नो हाउ होनी चाहिए कि ये किस तरीके से हो रहा है, और ये भी प्रैक्टिस से होता है। नेक्स्ट आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखिए पूरी ऑर्गेनिक, पूरी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ये भरा पड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यूजुअली जो पेपर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछी जाती है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू पूछी जाती है। आपको पूछ लेंगे कि मैग्नीज 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव अगर जा रहा है, या फिर आपके पास Cl0 Cl2 स्टेट से Cl नेगेटिव स्टेट में जा रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन और या एडिक्शन रिडक्शन हो गया। अब आपको उस वक्त गेस करने की बजाय आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि देखिए रिडक्शन के केस के अंदर आपके पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो ऑक्सीडेशन का केस होता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये आपको आना चाहिए। अब रीएजेंट्स जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन शो करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन शो करता है। तो ये आपको पर्टिकुलर डिफरेंसेस आने चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना कि ऑक्सीडेशन के अगर आपको पेपर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और आप आंसर लगा रहे होते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डूइंग रिडक्शन। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन में डिफरेंस है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, और रिडक्शन वो होता है जो रिड्यूस हो रहा होता है। सो सी दिस इज द स्लाइड डिफरेंस। नेक्स्ट आर द ऑक्साइड्स रिएक्शंस। ऑक्साइड्स के जितने रिएक्शंस है आपके पास, जो जो उनका बन रहा होता है ग्रुप 1, 2, 3 के अंदर, 4 के अंदर जितने आप ऑक्साइड्स की रिएक्शन देते हो, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, ये सारे के सारे इंक्लूडेड है। अब देखिए आपको पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड 1/2 -1 इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। एटॉमिक ट्रेंड्स की बात कर लेती हूँ। एटॉमिक ट्रेंड्स जो है 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर का। जो भी एम्बिग्युअस ट्रेंड्स आ रहे हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हैलोजेंस के ग्रुप में क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। वाई? बिकॉज फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से हम फ्लोरीन की ज्यादा कहते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो सी ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो विद रीजन आपको बताना चाहिए। समटाइम्स इन पेपर यू आर आस्क्ड रीजन, sometimes